السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر سنکرانتی تہوار گھروں میں منائیں، عوام شخصی طور پر محتاط رہیں، کووڈ کی تیسری لہر سے خوفزدہ نہ ہوں، کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت تیار، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ تلنگانہ سے نظام اور اویسی کا نام مٹا دیا جائے گا، ورنگل میں آسام کے وزیر اعلیٰ کے زہر افشانی۔ KCR کی بی جے پی کی مخالفت اور تیسرے محاذ کی تیاریاں ایک معمہ، یا TRS کو اقتدار میں لانے کی حکمت عملی۔ شہر میں مرغوں کی لڑائی، 10 افراد گرفتار، سنکرانتی کے موقع پر لگائی جاتی ہیں شرطیں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماوین پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماوین ہائٹس ورنداون کالونی، ماوین پریسٹیج آصف نگر، ماوین ایلائٹ، ماوین کراؤن، ماوین ایلیگنس، ابرار ماوین ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین۔ سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے عوام سے کہا ہے کہ کورونا سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کووڈ قواعد پر سختی سے عمل کریں، ماسک، ہاتھوں کی صفائی اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے شخصی طور پر بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ پرگتی بھون میں موجودہ گورنر کورونا صورتحال پر محکمہ صحت کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر محکمہ صحت کی جانب سے رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ عالمی سطح پر کورونا کی تیسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے، لہٰذا عوام کو چاہیے کہ وہ محتاط رہیں اور شخصی طور پر خود کو محفوظ رکھنے کے لیے حکومت کے قواعد پر عمل آوری کریں۔ غیر ضروری خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 15 تا 18 سال کی عمر والوں کو ٹیکہ اندازی مہم کے دوران والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹیکہ دلوائیں۔ انہوں نے بتایا کہ پیر کے دن سے 60 سال کے عمر کے افراد کو بوسٹر ڈوز دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فرنٹ لائن ورکرز اور ہیلتھ ورکرز کو بھی بوسٹر ڈوز دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مستحق افراد کو ٹیکے دیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص میں کووڈ کے علامات ظاہر ہونے پر انہیں فوری قریبی اسپتال سے رجوع ہو کر علاج کروانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سنکرانتی تہوار کے موقع پر پرہجوم اجتماعی طور پر تہوار منانے کے بجائے عوام اپنے گھروں میں تہوار منائیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی سنگین حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت پوری طرح تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سرکاری اسپتالوں میں کووڈ سے نمٹنے سے متعلق اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر امارت و شعراء پرشانت ریڈی نے سیکریٹریٹ کی تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ مساجد، چرچ اور مندر کے کاموں کو جلد شروع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے مساجد، مندر، چرچ کے لیے مختص کردہ جگہ کا معائنہ کیا اور عہدیداروں اور کام کرنے والی ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ ان کاموں کو
जल्द से जल्द मुकम्मल करें। इन्होंने सेक्रेटेरिएट के जारी कामों पर इत्मीनान का इजहार भी किया और कहा कि तामीरी कामों में मजीद तेजी लाई जाए। इतवार के दिन वजीर आला ने वजीर प्रशांत रेड्डी से सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। वजीर आला ने पुलिस कमांड कंट्रोल रूम के कामों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की और इसको जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जहर उगलते हुए कहा है कि तेलंगाना से निजाम और अवैसी का नाम मिटा दिया जाएगा। GO 317 को लेकर बीजेपी के एहतजाज के दौरान वरंगल में एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद किया गया, जिसमें आसाम के वज़ीर आला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन्होंने अपने खिताब के जरिए जहर घोलते हुए कहा कि नए भारत में औरंगजेब, निज़ाम और अवैसी का नाम नहीं होगा, नाम होगा तो सरदार वल्लभ पटेल का होगा। इन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम नया तेलंगाना चाहती है क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने तेलंगाना अवाम को धोखा दिया और नौजवानों को धोखा दिया है। इन्होंने कहा है कि जिस तरह आर्टिकल 370 खत्म हो गया और राम मंदिर बन गया, इसी तरह नया भारत भी बनेगा। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना की खानदानी हुकूमत का भी खात्मा हो जाएगा। फार्म हाउस में रहकर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती, अवाम से मिलना होगा, वरना 2023 में अवाम KCR को भूल जाएगी। इन्होंने कहा है कि पुलिस के जरिए हुकूमत चलाई जा रही है, जब बीजेपी की हुकूमत बनेगी तो फार्म हाउस में पुलिस दाखिल होगी। इनके अलावा दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। मरकजी हुकूमत की तायद करने वाले KCR के तेवर की तब्दीली और बीजेपी के खिलाफ महाज की तैयारी करने की तैयारियां एक मुअम्मा है। वजीर आला की कम्युनिस्ट के साथ दोस्ती तेलंगाना में TRS को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए है या फिर वफाकी निज़ाम के नारे के सहारे तीसरे महाज की वफादारी का सबूत है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के लिए TRS पार्टी को दोबारा इख्तिदार में लाना जो शीर लाने के बराबर है। तेलंगाना में KCR हुकूमत मुखालिफ लहर शुरू हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी हुकूमत के बाद फैसले को सियासी रंग देकर अपने सियासी ग्राफ में इजाफा करने की कोशिश में है। इन हालात में KCR फिर एक बार वफाकी निज़ाम कायम करने के अज़्म के साथ तीसरे महाज के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि रियासत में इख्तिदार हासिल करने के लिए KCR को एड़ी चोटी का जोर लगाना है तो मरकजी सतह पर सियासी भागदौड़ की लगाम थामने का KCR का इरादा मज़ाहिका खैस दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता 7 साल से KCR ने मरकजी हुकूमत बीजेपी के हर फैसले की तायद करते हुए अपने वफादार होने का सबूत दिया। हुजूराबाद के इंतखाब के बाद से वज़ीर आला का मौक़िफ़ तब्दील होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की खुलकर मुखालिफत शुरू हो गई है। हर प्लेटफॉर्म पर बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ग्राफ में गिरावट को देखते हुए KCR का मौक़िफ़ तब्दील हो गया है या फिर हुजूराबाद में शिकस्त के बाद मुखालिफत शुरू की गई है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वक्त आने पर गधे को काका बना लेने का हुनर जानते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 2018 के असेंबली इंतखाबात से कबल ही वफाकी निज़ाम का नारा देते हुए मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मौजूदा वज़ीर आला और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। बदलते सियासी हालात के बाद KCR ने वफाकी निज़ाम का नारा भुला दिया। चूंकि KCR क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं तो फिर एक बार वज़ीर आला ने तीसरे महाज का राग अलापना शुरू कर दिया है। इस बार KCR ने कम्युनिस्टों का सहारा लेने का फैसला लिया क्योंकि रियासत में कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर थोड़ी बहुत सियासी गिरफ्त है तो CPI और CPM की है। इनको भी सियासी तौर पर मुस्तहकम होना है, लिहाजा KCR ने इनको करीब करने की कोशिश शुरू कर दी है ताकि किसानों के 3 कवानीन, सरकारी इदारों को कानगियाना और बीजेपी की फ़िरका परस्ती के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाई जा सके और तीसरे महाज में अपने लिए दरवाज़ा खुला रखा जा सके।
अब सवाल यह है कि केसीआर का कम्युनिस्टों के साथ दोस्ती मरकजी सतह पर लड़ी जाने वाली लड़ाई है या फिर उनकी मदद से तेलंगाना में दोबारा इख्तिदार हासिल करना है। इसका खुलासा करना अभी मुश्किल है। मुबस्सरीन का मानना है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मौक़िफ़ किसी भी वक्त तब्दील हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर 4 रियासतों के नताइज के बाद ही वाज़ेह होगा कि केसीआर का ऊंट किस करवट बदलेगा और केसीआर किसके वफादार हैं, इसका भी खुलासा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, 4TV न्यूज़। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पंजाब में नरेंद्र मोदी ने जो ड्रामा किया है वो वज़ीर आज़म के ओहदे के वक़ार को कम करता है। इतवार के दिन CLP का हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में GO 317, किसानों के मसाइल, धान की खरीदी, बरक़ी शरहों में इजाफा जैसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वज़ीर आज़म ने एक दलित वज़ीर आला का मजाक बनाने की कोशिश की। पंजाब में दलित चीफ मिनिस्टर को नाकाम बनाने की वज़ीर आज़म ने साजिश की है। इन्होंने कहा कि इस पर मजीद ड्रामा बंद करें। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मिर्ची की काश्त करने वाले किसानों के अलावा हल्दी और कपास की काश्त करने वाले किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए CLP वफ्द गवर्नर से मुलाकात करेगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि दरिंदा सिफत रघुवेंद्रा की गिरफ्तारी नाकाफी है। उनके वालिद वेंकटेश्वर राव से इस्तीफा दिलाएं। इसके अलावा अगर बरक़ी शरहों में इजाफा किया गया तो कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। इन्होंने कहा कि GO 317 में तरमीम की जाए। इस सिलसिले में मरकज होम सेक्रेटरी को मकतूब भी रवाना करने का CLP ने फैसला लिया है। बीजेपी लीडर P सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बल्कि कमर्शियल पार्टी बन चुकी है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी मफाद परस्त पार्टी बन चुकी है। इन्होंने कहा है कि अपोजिशन का तीसरा महाज तो दूर की बात है, इनको टेंट भी नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा है कि TRS कायदीन को एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के अलावा कोई और काम नहीं आता। इन्होंने कहा है कि बीजेपी में शामिल होने वाले अरकान असेंबली इस्तीफा देकर दोबारा कामयाब हुए हैं। अगर TRS में हिम्मत है तो कांग्रेस से TRS में शामिल होने वाले अरकान इस्तीफा देकर दोबारा कामयाब होकर बताएं। इन्होंने कहा है कि TRS के विज़रा इस तरह बात करते रहेंगे तो TRS अरकान असेंबली का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया जाएगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी का हल्के असम्बली मलकपेट में हज़ारों मुहिब्बान मजलिस ने पुरजोश खैर मकदम किया। कायद मजलिस के ने मुतल्लिका रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा मलकपेट के बलदी डिवीज़न आजमपुरा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तजावीज़ व नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा 4 करोड़ 60 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। अकबर अवैसी की मलकपेट आमद से कई घंटे कबल ही मुकामी पुरजोश नौजवान मुहिब्बान मजलिस और मजलिसी जिम्मेदार चादर घाट पहुंच गए थे। आजमपुरा, चंचलगुड़ा और दीगर कई मुकामात पर अकबर अवैसी के खैर मकदम के लिए स्टेज बनाए गए थे। कायद मजलिस ने गुलजार मस्जिद के करीब पहला इफ्तिताह अंजाम दिया और इसके बाद चंचलगुड़ा के खल्ला और मौलवी साहब की मस्जिद के करीब मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी के जरिए करवाए जा रहे तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने सदर अंजुमन महदविया मौलाना काशिफ मियां से भी मुलाकात की। इस मौके पर मलकपेट के अराकीन बलदिया मिनहाजुद्दीन, सलाम शाहिद, नुमाइंदे रुकन सैफुद्दीन शफी, मुतल्लिका नुमाइंदे रुकन बलदिया मुहियुद्दीन अबरार, साबिका अराकीन बलदिया मुर्तज़ा अली, सैयद अब्दुल हक नज़ीर के अलावा सीनियर मजलिसी रुकन सैयद अलीम और दीगर मजलिसी जिम्मेदारान मौजूद थे।
वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि मास्क जरूरी है और हमेशा अपने साथ रखें। अगर आपका खानदान सेहतमंद रहे तब भी आप मास्क लगाएं। इतवार के दिन एक खानगी अस्पताल के इफ्तिताही तकरीब के दौरान वहां पर मौजूद खवातीन ने वज़ीर सेहत के साथ तस्वीर कशी के लिए अपना मास्क निकाला था, जिस पर हरीश राव ने जिन खवातीन ने मास्क नहीं पहना था उनको मास्क पेश करते हुए कहा कि खुद सेहतमंद रहें और अपने अफराद खानदान को सेहतमंद रखें। कोरोना से बचने के लिए मास्क लाजमी है। खवातीन ने कहा कि तस्वीर लेने के लिए मास्क निकाला गया है, तो वज़ीर सेहत ने कहा कि किसी भी वक्त मास्क ना निकालें। तेलंगाना में इतवार के दिन कोविड के 1673 नए केसेस दर्ज हो गए। 330 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि एक मौत की तस्दीक की गई है। जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 13,522 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर जीएचएमसी में 1,165, मेरचल मलकाजगिरी में 149, रंगारेड्डी में 123, संगारेड्डी में 44, हनमकुंडा में 34, निजामाबाद में 13, मंचिरियाल में 10, खम्मम में 10, करीमनगर में 16, दिगर अजला में 10 से कम केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि मुलुगू में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। रियासत में कोविड की तीसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है, लेकिन अवाम में खौफ नाम की चीज नहीं। हुकूमत की जानिब से मुसलसिल कोविड कवायद पर सख्ती से अमल आवरी की तलकीन के बावजूद अवाम लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। कोविड की तीसरी लहर के पेश नज़र संडे फंडे प्रोग्राम को मनसूख कर दिया गया। इसके बावजूद अवाम के हुजूम में कोई कमी नहीं देखी जा रही। यौमिया 500 से ज्यादा केसेस का इजाफा होता जा रहा है, लेकिन चार मीनार के दामन में अवाम की तरफ से कोविड कवायद की खुली खिलाफ वर्जी का मुजाहरा किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से भी कोई मौसर इंतजामात नहीं किए गए। हाल ही में चार मीनार ट्रैफिक पुलिस का अमला भी कोविड का शिकार हुआ है। चार मीनार के दामन में बाजार में अवाम बगैर मास्क लगाए घूम रहे हैं, जबकि मास्क फरोख्त करने वाला भी मास्क के बगैर नजर आया। महकमा सेहत ने संक्रांति के बाद केसेस में तेजी से इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। दूसरी तरफ हुकूमत मजीद तहदीदात आयद करने पर गौर कर रही है। अगर अवाम खुद कोविड कवायद पर अमल नहीं करेंगे तो उनके लिए नुकसानदा है। अगर सूरत हाल इसी तरह रही तो रात का कर्फ्यू नागुजीर हो जाएगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के सुलेमान नगर डिवीजन में सीवरेज के कामों के लिए बलदिया कमिश्नर से नुमाइंदगी करते हुए 14 लाख रुपए के कामों को मंजूरी दिलवाई है। सुलेमान नगर में सीवरेज लाइन और सीसी रोड के काम शुरू हुए हैं। राजेंद्र नगर हल्के के मजलिस के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने सिटविन 9 नंबर मोहम्मदाबाद में जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। उनके हमरा सुलेमान नगर के कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद और बलदी ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिस के मोतमदीन भी मौजूद थे। एसओटी एलबी नगर पुलिस टीम ने नादिरगुल में वाक़े प्रेस कॉलोनी के एक मुकाम पर मुर्गों की लड़ाई के मुकाम पर धावा किया और इस सिलसिले में ऑर्गेनाइजर समेत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। संक्रांति त्यौहार के मौके पर मुर्गों की लड़ाई पर शर्तें लगाई जाती हैं। पुलिस ने तकरीबन 50,000 रुपए नकद, 13 जिंदा मुर्ग, 2 मुर्दा मुर्ग और मुर्गों की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले 36 चाकू, 8 मोबाइल फोन, 4 टू व्हीलर्स और दीगर अशिया जब्त कर ली और उन्हें मजीद कार्रवाई के लिए आदिबाटला पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने एक बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कल्याण नगर अमीरपेट के एक अपार्टमेंट में 3 पत्ते खेलने वालों पर धावा किया और 20 अफराद को जो 3 पत्ते खेल रहे थे गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 4,88,260 रुपए की रकम, पत्तों के सेट और दीगर अशिया भी जब्त कर ली। डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स ई राधाकृष्ण राव की क़यादत में ये धावा किया गया। इस बात का पता चला है कि 3 पत्ते जुआ चलाने वाला ऑर्गेनाइजर एस रामाकांत रेड्डी है, जो कमीशन की बुनियाद पर यह गेम खेलता है। उसने रिहायशी अपार्टमेंट को गेम हाउस में तब्दील कर लिया था, जहां मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद पत्ते खेलने के लिए आते थे। तमाम 20 अफराद गिरफ्तार शुदा अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया।
आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। संक्रांति त्यौहार घरों में मनाएं, अवाम शख्सी तौर पर मोहतात रहें, कोविड की तीसरी लहर से खौफजदा ना हो, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत तैयार, वज़ीर आला का जायजा इजलास। तेलंगाना से निजाम और अवैसी का नाम मिटा दिया जाएगा, वरंगल में आसाम के वज़ीर आला के ज़हर इफ्शानी। KCR की बीजेपी की मुखालिफत और तीसरे महाज की तैयारियां एक मुअम्मा, या TRS को इख्तिदार में लाने की हिकमत अमली। शहर में मुर्गों की लड़ाई, 10 अफराद गिरफ्तार, संक्रांति के मौके पर लगाई जाती हैं शर्तें। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।